خبروں کی تفصیلات میں یہاں سب سے پہلے بات کر لیں گے فضائی آلودگی کے حوالے سے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور دوسرے نمبر پر آ چکا ہے۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 218 ریکارڈ، آب و ہوا مزر صحت ہے، CERP 298۔ اقبال ٹاؤن میں آلودگی کی شرح 229 ریکارڈ کی گئی۔ سول سیکریٹریٹ میں 200 برکی روڈ پر آلودگی کی شرح 182 ریکارڈ کی گئی۔ بیدیا روڈ پر ایئر کوالٹی انڈیکس 196 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید صورتحال جان لیں گے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ توقیر اکرم موجود ہے، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ شہر لاہور میں آلودگی کی شرح میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے اور اب تقریباً 218 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ جس طرح سے لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس آلودگی میں اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، یہ بہت زیادہ مضر صحت ہے، اور شہر کی ایسی متعدد شاہراہیں ہیں جہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس 300 تک پہنچ چکا ہے، اور اسی وجہ سے جو ماہرین ہیں انہوں نے سخت ہدایات دی ہیں کہ ماسک کا استعمال لازمی کریں، کیونکہ جو ذرات ہیں، جو آلودگی کے ذرات ہیں، وہ سانس کے ذریعے آپ کے اندر جاتے ہیں، جس سے آپ کا چیسٹ انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے، گلے میں خراش، آنکھوں میں چبھن جیسی بیماریاں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو آلودگی ہے، جو ماہرین کہتے ہیں کہ اس میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ گاڑیوں کا دھواں، ایندھن کا دھواں ہے، اور اس کی وجہ سے آلودگی پیدا ہوتی ہے، اور اس میں اضافہ بہت زیادہ مضر صحت ہے۔ اسی لیے اس کو جہاں حکومت اقدامات کر رہی ہے کنٹرول کرنے کے لیے، وہیں پر کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بھٹے ہیں ان پر کنٹرول کیا جائے تاکہ آلودگی میں اضافہ نہ ہو۔ دوسری جانب ماہرین کی جانب سے سخت ہدایات دی جا رہی ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جی ٹھیک ہے توقیر، بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ چیرنگ کراس قوت بصارت سے محروم افراد کا دھرنا 16ویں روز بھی جاری ہے۔ پنجاب بھر سے تعلق رکھنے والے نابینا افراد احتجاجی دھرنے میں شریک ہے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کے افسران اور نابینا افراد کے درمیان مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ کیا وجوہات سامنے آ رہی ہیں؟ رومیل الیاس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ رومیل، بتائے گا کیا مطالبات ان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں اور مذاکرات کیوں ابھی تک ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ بالکل، پنجاب کے مختلف سرکاری محکموں میں مخصوص کوٹے پر بھرتی جو نابینا عارضی ملازمین ہیں ان کا دھرنا آج 16ویں روز بھی جاری ہے، اور اس دھرنے میں شریک جو نابینا افراد ہیں وہ کھلی فضا میں سرد راتیں اور کھانے پینے کی قلت اور ادویات کی کمی کے باعث اب بیمار پڑنے لگے ہیں، اور دوسری جانب اس چیرنگ کراس چوک مال روڈ پر یہ 16 دن سے دھرنا جو جاری ہے، اس سے جو مال روڈ چیرنگ کراس سے جو ٹریفک ہے وہ بند ہے، جس سے ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر ہے، اور عام شہریوں کو بھی اذیت ناک جو مشکلات یہاں پر درپیش ہیں، اور دفاتر سے واپس گھروں کو جانے والے جو لوگ ہیں وہ یہاں ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں۔ شہری پریشان ہے یا نابینا افراد جو ہیں یہ یہاں پر مشکلات سے دوچار ہیں، مگر جو محکمہ سوشل ویلفیئر کے افسران ہیں وہ مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے میں۔ شروع کے 2-4 دنوں میں محکمہ سوشل ویلفیئر کے افسران کی جانب سے کوشش کی گئی، مذاکرات کے لیے ان کو بلایا بھی گیا، مگر وہ مذاکرات جو ہے وہ بغیر نتیجہ ختم ہو گئے، اور ان کا جو دھرنا تھا وہ جاری رہا ہے۔ مگر اب تقریباً کوئی 12 روز ہو چکے ہیں، سوشل ویلفیئر افسران کی جانب سے کوئی رابطہ جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں کیا گیا ہے، اور یہاں پر جو صورتحال ہے اب یہ ہے کہ ایک طرف شہری پریشان ہے، دوسری جانب نابینا افراد جو ہیں یہ بیمار پڑ رہے ہیں۔ تو اب نابینا افراد سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے اور ان کی یہ جو ضد ہے یہ کب تک جاری رہے گی۔ بتائیں جی، کیوں آپ باضد ہیں؟ ایک جانب آپ کے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں، دوسری طرف یہ لوگ جو یہاں سے گزر رہے ہیں وہ بھی مشکلات سے دوچار ہیں، تو کیوں مذاکرات نہیں ہو رہے؟ سر، یہ تو سب سے پہلے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا کوئی ایسا الاسٹیمیٹ ڈیسیژن یا مطالبہ نہیں ہے۔ ہم 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آئے ہیں کہ ہمیں برسر روزگار کر دیے جائے مستقل بنیادوں پر، اور اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے؟ آپ یہ اپنے لوگوں کو لے کر آئے ہیں یا بیمار پڑ رہے ہیں، کھانے پینے کو آپ کے پاس وسائل نہیں ہے، سرد موسم ہے، تو اس حال میں کوئی سلوشن نکالیں، کوئی رستہ نکالیں نا۔ سر، غذائی قلت کا ہمارے لوگ شکار ہیں، بیمار پڑ رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہمارے 10-15 لوگ گھروں کو بھی جا چکے ہیں، لیکن میو ہاسپٹل میں کچھ لوگ ہمارے داخل بھی ہیں، کچھ لوگ جو ہمت حوصلہ کوئی راستہ نکال رہے آپ رکھتے ہیں۔ ہم نے 2 سولوشن دیے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کو۔ سب سے پہلے تو جو 1 آرڈیننس کے تھرو پرابلم کا سولوشن ہے، گورنمنٹ آف پنجاب جب تک ہمارے مطالبات یا یہ یک نکاتی مطالبہ سالو نہیں ہوتا تب ہمیں
एज वर्क चार्ज मुस्तकिल बुनियादों पर भर्ती कर दे और 60,000 रुपये माहाना पर अगर तमाम तर 1500 डेली वेजेस को रखा जाए तो 1 अरब 8 करोड़ रुपया लागत आती है। ये कोई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 2 सड़कों का बजट कम करना। इस बात पे अब डेडलॉक जो है वो बरकरार है और दूसरा ये डेडलॉक जो है वो बरकरार है। नाबीना अफराद का ये कहना है कि इनकी जो मुलाजमतें हैं उन्हें ना सिर्फ मुस्तकिल किया जाए बल्कि इन नाबीना मुजाहिरीन की जो अक्सरियत है वो अब कामकाज से फारिग हो चुकी है। वो जिन जिन महकमों में काम करते थे उनके साथ उनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो मनसूख हो चुके हैं और बेरोजगार होकर अपने घरों को बैठे हैं। इनका ये मुतालबा है कि उन मुलाजमीन को दोबारा से जो है वो एडियाक बेसिस पे आर्जी बुनियादों पर जो है वो भर्ती किया जाए, 60,000 रुपया माहाना वजीफा लगाया जाए और संजीदा होकर जो बातचीत है वो हमारे साथ की जाए और हमारे ये जो 2-3 मुतालबात हैं इनमें से कोई एक मानकर बकाया जो 2 मुतालबात हैं उनका वक्त दे दिया जाए। दूसरी जानिब शहरी भी ये अपील कर रहे हैं कि हुकूमत समेत जो दीगर अदारे हैं वो इन नाबीना अफराद को संजीदा ले और इनके साथ आकर बातचीत करके इनका जो धरना है वो ख़त्म करवाएं ताकि ये नाबीना अफराद बीमार पड़ रहे हैं ये अपने घरों को वापस जा सकें और जो शहरी ट्रैफिक मसाइल से 2-4 हैं उन्हें भी। ठीक है रुमेल, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं कि आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप में शामिल 20 टीमों को 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में पाकिस्तान, इंडिया, नेदरलैंड और अमेरिका की टीमें शामिल हैं। मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे, वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा। कुल आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के जो शेड्यूल है उसका ऐलान कर दिया है। इसमें पाकिस्तान को ग्रुप ए में रखा गया है जिसमें पाकिस्तान और भारत एक मरतबा फिर सेम ग्रुप के अंदर है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के साथ नामीबिया, नीदरलैंड और अमेरिका की टीमें शामिल हैं। अगर पाकिस्तान के मैचेस की बात की जाए तो पाकिस्तान जो है वो अपना पहला मैच जो है वो 7 फरवरी को खेलेगा कोलंबो में नीदरलैंड के खिलाफ। इसके साथ साथ पाकिस्तान अपना दूसरा मैच जो है वो 10 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच जो है वो भारत के खिलाफ सबसे बड़ा मैच जो है इस वर्ल्ड कप का वो खेला जाएगा। 15 फरवरी को ये मैच भी कोलंबो के अंदर खेला जाएगा। पाकिस्तान अपने 4 मैचेस जो है वो कोलंबो के अंदर खेलेगा। पाकिस्तान अपना जो आखिरी मैच होगा लीग मैच वो नामीबिया के खिलाफ 18 फरवरी को जो है वो खेलेगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मरहले का जो आगाज है वो 21 फरवरी से होगा और इख्तिताम जो है वो 1 मार्च तक होगा। पहला सेमीफाइनल जो है वो कोलकाता या कोलंबो में खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो कोलंबो में खेला जाएगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल जो है वो 5 मार्च को मुंबई के अंदर खेला जाएगा। फाइनल की सूरत में अगर पाकिस्तान जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो फाइनल जो है वो कोलंबो के अंदर खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता तो ये मैच जो है वो अहमदाबाद के अंदर खेला जाएगा। इसमें आईसीसी ने डिटेल शेड्यूल जो है वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ऐलान कर दिया है। ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। की सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कॉन्वे शाहरा कायद-ए-आज़म ऐवान वज़ीर-ए-आला का दौरा किया। नवाज शरीफ ने अफसरान से मुलाकात की और तज़ीन और आराइश का जायज़ा लिया। नवाज शरीफ ने नीला गुंबद की ज़ेर तामीर पार्किंग साइट और बहाली के तामीराती कामों का जायज़ा लिया। मियां नवाज शरीफ ने ऐवान वज़ीर-ए-आला में जारी रिवैम्पिंग और तामीराती कामों का तफसीली जायज़ा लिया। इस मौके पर नवाज शरीफ ने अफसरान से मुलाकात भी की। हुकाम ने उन्हें रिवैम्पिंग के तामीराती मराहिल और दफातर की तज़ीन और आराइश से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बताया गया कि कायद-ए-आज़म ऐवान वज़ीर-ए-आला के मुख्तलिफ दफातर की जदीद खतूत पर तज़ीन और आराइश जारी है। सूबाई वज़ीर बराए प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर का जलानी पार्क का दौरा किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ने सालगिरह के मौके पर जलानी पार्क में पौधा भी लगाया। MDPHA राजा मंसूर और सीनियर अफसरान भी सूबाई वज़ीर की जानिब से पौधा लगाने के मौके पर मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि इस मौके की सूरत हाल के पेश नज़र शजरकारी की अहमियत और भी ज़्यादा हो गई है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि दरख्त लगाना सदका जारिया है, इसे मज़ीद फ़रोग़ दी जाना चाहिए। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सालगिरह पर शजरकारी का एहतमाम करने पर PHA हुकाम का शुक्रिया अदा किया। DGLA ताहिर फारूक का शहर में जारी और मुजव्वज़ा तरक्याती मंसूबों की साइट का दौरा, नीला गुंबद, दाता दरबार, रावी रोड, मुल्हका तरक्याती स्कीमों के कामों का जायजा लिया। DGLA ताहिर फारूक ने ज़ेर तामीर अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा मंसूबे का दौरा किया। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन भी हमरा मौजूद थे। DG को बताया गया कि नीला गुंबद मज़ार के अतराफ से तजावुज़ात और इमलाक हटाने से गुंबद की शक्ल वाज़े हो गई है। अरसे दराज के बाद नीला गुंबद मज़ार शहरियों को बाहर सड़क से नजर आने लगा। DGLA ताहिर फारूक ने नीला गुंबद मंसूबे के जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने मंसूबे पर जारी कामों बारे ब्रीफिंग दी।
पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और अक़वाम मुत्तहिदा की सनफी बुनियाद पर तशद्दुद के खिलाफ 16 रोज़ा मुहिम का आगाज़ हो गया। ख़वातीन और लड़कियों के लिए डिजिटल तहफ़्फ़ुज़ पर आला सतह के मुकालमे का इनेकाद किया गया। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारों ने सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के खात्मे के लिए आलमी 16 रोज़ा मुहिम का आगाज एक भरपूर तकरीब के साथ किया, जिसका मौजू स्मार्ट सिटीज और डिजिटल तहफ़्फ़ुज़, ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ डिजिटल तशद्दुद का खात्मा रखा गया। इस साल की मुहिम का मरकज ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ बढ़ता हुआ डिजिटल तशद्दुद है। वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान का कहना था कि तशद्दुद की नौयत बदल गई है, इसलिए कानून और अदारों का किरदार भी बदलना होगा। डिजिटल तशद्दुद का खात्मा ये हमारी भी अव्वलीन तरजीह पहले से भी है और दूसरी कौमों ने भी इसकी तायीद की है। हम इंशाअल्लाह इस पर पूरी तरह काम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत तालीमी इदारों में जिनसी तशद्दुद की रोकथाम के लिए और अमले की जांच पड़ताल के लिए मैकेनिज्म ला रही है। जो तकरीब में हुकूमती नुमाइंदों, कानून साजों, टेक्नोलॉजी माहिरीन, नौजवानों और खवातीन के हकूक के कारकुनों ने शिरकत की। पंजाब असम्बली में वुमेन कॉक्स कमेटी की कन्वीनर बेगम इशरत अशरफ का कहना था कि खवातीन और लड़कियों के हकूक को आलमी तरक्की के मरकज में रखना होगा। हमारी चीफ मिनिस्टर ने फौरन आने के बाद एक्शन लिया और ये एक ख्वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए उन्होंने ये सेंटर बनाया, एक ऐप बनाया, जिसकी वजह से एक प्रोटेक्शन की जो है वो ख्वाब जो है वो ज़रा पूरा हुआ। शुरका ने भी तकरीब के इनेकाद को ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संग मील करार दिया। तकरीब के इख्तिताम पर सिनफी आज़ादी के अलामती गुब्बारे भी उड़ाए गए। कैमरामैन खुरम सिंधु के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। आईजी पंजाब ने 13 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। नवीद आतिफ SSP सेफ सिटीज अथॉरिटी लाहौर तैनात, हैदर अली को SSP ऑपरेशंस मुल्तान तैनात कर दिया गया। मोहम्मद ताहिर को SSP इन्वेस्टिगेशंस मुल्तान तैनात किया गया। मोहम्मद सईद को SP सदर फैसलाबाद तैनात किया गया। SSP ऑपरेशंस फैसलाबाद बुशरा जमील को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। वसीम अख्तर को SPP HP गुजरांवाला तैनात किया गया है। इमरान रज़ा को CTO मरी तैनात कर दिया गया। MP समीला खान ने हल्का BP 145 का दौरा किया। हल्के में पहुंचने पर लीगी कारकुनान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। UC 2 में 82 जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया और अमले को जल्द मुकम्मल करने का काम हिदायत भी दी है। MP समीला खान ने हल्का BP 145 का तफसीली दौरा किया है। साजिद चौहान, इफाकत वाहला, शेख काशिफ, मलिक अब्दुल रशीद, इरफान खान काकड़, उस्मान वाहला, परवेज़ खान, रास खान, उमर बलोच, राना जमील भी उनके साथ मौजूद थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लाहौर का इजलास निस्र टाउन, रावी टाउन और रायविंड के नौमुंतखब अहदेदारों को उनके अहदों के नोटिफिकेशन जारी किए गए। मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लाहौर का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में निस्र टाउन, रावी टाउन और रायविंड के नौमुंतखब अहदेदारों को उनके अहदों के नोटिफिकेशन जारी किए। इजलास में काफ लीग लाहौर के सदर मियाँ वहीद, जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान, सीनियर नायब सदर चौधरी इरफान, नदीम पग्गावाला, तारिक, मोहम्मद वकास अली, महा आसिफ समेत दीगर ने शिरकत की है। इजलास में सरदार नासिर को निस्र टाउन के सदर, जबकि जाहिद कुरैशी जनरल सेक्रेटरी, चौधरी शौकत सीनियर नायब सदर और सफदर आवान को सीनियर नायब सदर निस्र टाउन का नोटिफिकेशन जारी किया। सेठ मोहम्मद सलीम सदर काफ लीग रायविंड, जबकि फारूक गुजर को सीनियर नायब सदर का नोटिफिकेशन दिया गया। नवीद पहलवान को सदर काफ लीग रावी टाउन, इरफान बट और चौधरी मुमताज़ को नायब सदर मुकर्रर किया। बच्चों के आलमी दिन पर नादरा लाहौर रीजन की जानिब से खसूसी इक़दामात जारी हैं। बच्चों के हकूक़ और बरवक्त शनाख्ती अंदराज की अहमियत को उजागर करने के लिए डीजी नादरा लाहौर रीजन फ़िज़ा शाहिद ने फ़िरोज़पुर रोड पर वाक़े SOS विलेज का दौरा किया, जहाँ यतीम बच्चों से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और खसूसी तोहफ़े भी पेश किए। इस मौके पर नादरा की मोबाइल वैन ने तमाम बच्चों की बेफार्म और रजिस्ट्रेशन का अमल मौके पर ही मुकम्मल किया। बच्चों के आलमी दिन के मौके पर नादरा लाहौर रीजन की जानिब से मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद हुआ। फ़िरोज़पुर रोड के SOS विलेज में डीजी नादरा फ़िज़ा शाहिद ने बच्चों के रजिस्ट्रेशन मसाइल सुने और उन्हें प्यार और शफ़क़त का एहसास दिलाया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और ड्रिप की जानिब से डिजिटलाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस के उन्वान से तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद हुआ। एडिशनल डायरेक्टर ड्रिप
سید ضیاء حسین اور صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے خصوصی شرکت کی ہے۔ اس موقع پر ڈریب حکام نے بتایا کہ 70% ڈیجیٹلائزیشن کا کام ہو چکا، جنوری 2026 سے یہ نافذ العمل ہو جائے گا۔ تقریب میں سینئر نائب صدر لاہور چیمبر تنویر احمد بھی موجود تھے۔ اسکول آف ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کے زیر اہتمام ماسٹر شیف کوکنگ مقابلہ پاکستان ریسٹورنٹس ایسوسی ایشن کے اشتراک سے اس کا انعقاد ہوا۔ پنجاب بھر سے آئے شخص نے اپنے ہنر کے جوہر دکھائے۔ نیم ڈاکٹر سمینہ شاہ، مارکیٹنگ مینیجر محمد ارکم سمیت دیگر موجود تھے۔ یونیورسٹی آف لاہور میں ماسٹر شیف کولڈ کوکنگ مقابلے کا انعقاد ہوا۔ اسکول آف ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ، یونیورسٹی آف لاہور اور پاکستان ریسٹورنٹس ایسوسی ایشن کے اشتراک سے مقابلوں کا انعقاد ہوا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔